Hi everybody. जैसा कि आप जानते हैं, I had a BMW in the past. BMW 2017 X1 और उस गाड़ी से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पहले 5 साल गाड़ी बहुत अच्छी चली. I had no problems whatsoever. But suddenly during the 6th year, उसकी जो head gasket है, it blown off. Head gasket उड़ गई. उसके बाद I would definitely accuse BMW service, क्योंकि ये गाड़ी 5 साल BMW सर्विस सेंटर से उसकी जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस और सर्विस है सब वहाँ से हुई. So I would definitely blame them. But again now I am thinking to have another car. मैंने वो BMW जो सी है वो बेची है और उसे जान छुड़ाई है. Sort of बेचना नहीं बल्कि जान छुड़ाना था वो. उससे मैंने जान छुड़ाई है and now I'm thinking to have another car. अब नई गाड़ी कौन सी खरीदी जाए? When you are in Europe, there are many options. Electric cars, hybrid cars, diesel, petrol. So all options are there. अब आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ऑप्शन सूट करती है. क्योंकि मेरा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है हेड गैस्केट उड़ने का, तो नाउ आई एम प्रॉब्ली इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक कार, नीट एंड क्लीन एनर्जी. और मैंने मर्सिडीज की एक इलेक्ट्रिक कार विच इज बेसिकली EQB SUV, इट्स एन SUV, EQB 250. वो गाड़ी जो उनसे वो ट्रायल पे ली है. आई booked it for a test drive. I would like you to come with me on a test drive. I'll show you all the features and functionalities of this car. I'm not a car expert, but जितना knowledge मुझे है, I will try to give you kind of an overview. And then you can tell me, what do you think about electric cars? Electric गाड़ी खरीदनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए या डीजल कार खरीदनी चाहिए? But I think future is about electric cars, especially when you're in the European countries where you have all the options available to charge the car and all the facilities are here. So why not going for an electric car? So this is just my thinking and you can correct my thinking. So let's go on a ride. And now I'm trying different cars. So the first car which is on my cards, that is Mercedes EQ, Mercedes key electrical SUV. It's kind of an electric car. So let's see. As you could see, this is a fantastic, beautifully crafted Mercedes EQB Plus electric car. So I'm gonna take you on a ride और आपको थोड़े से मैं इस गाड़ी के फीचर्स बताऊंगा. उसके बाद we will drive on world famous German Autobahn, which is basically German highway जहाँ पे speed की कोई limit नहीं होती. So we'll drive on the streets, we'll drive on the highway, and we'll check out how this car will feel like when you drive it at a very high speed, when you drive at a slow speed, and we'll do it together. So what are you waiting for? Let's hit the road. Honestly, if you ask me, it's a fantastic interior. Very nice, beautiful and well crafted. Plastic थोड़ा ज़्यादा है, but that you can ignore. ये थोड़ी leather की यहाँ पे काम हुआ है. उसके ऊपर threading हुई है red color की, which looks very sporty. ये बड़ा soft सा material है, probably leather, I don't know what could it be. और इसके ऊपर भी threading हुई है, and that is basically plastic, but it looks really fancy because of ambient lighting. और जो इसके हैंडल्स हैं, they are also very smooth. Steering is really nice, crafted well with leather, threaded. LED screen है सामने, LCD है और touch screen है basically. You can see the speed and speedometer, everything is basically digital. और panorama roof है, you can call it sunroof, whatever. And then seats are also I think artificial leather plus polyester और इसके साथ
थ्रेडिंग हुई है, बट इट लुक्स रियली स्पोर्टी, क्लासिक, नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न. So altogether, very nice interior as far as polyester combination of leather and textile is concerned. Touch pad है जिससे आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके साथ कुछ बटन्स हैं और buttons are also very nice and smooth. Touch pad is really user friendly. उसके अलावा जो armrest है उसमें you have a lot of space. There are some charging accessories inside. उसके साथ ये बटन्स हैं जिनसे आप एयर कंडीशनिंग को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं. सीट हीटिंग जोन सी है वो दरवाज़ों के साथ है. बट ऑल टुगेदर वेरी नाइस एंड वेल क्राफ्टेड इंटीरियर. प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा, बट दैट्स व्हाट यू कैन इग्नोर एज ऑलरेडी टोल्ड यू. स्टीयरिंग के साथ यू कैन हैव सम बटन्स टू कंट्रोल द वॉल्यूम एंड टू कंट्रोल सम अदर things like speed limit, or you would like to do a limit, whatever. I really loved the rear view camera, 360-degree angle camera. It's quite an ease when you are reversing your car. Pretty easy to control and maneuver. गलियों में आप इसको आसानी से चला सकते हैं. Very nice controlled vehicle. छोटी सड़क के ऊपर और residential area में you can easily maneuver. It's not that much huge कि बहुत जगह चाहिए. Honestly speaking, it's the first time I am driving an electrical car. और मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क या ड्रॉबैक्स नज़र नहीं आए. इट्स इक्वली पावरफुल लाइक अ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, और ड्राइविंग में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है. आई हैड नो फीलिंग दैट आई एम ड्राइविंग समथिंग डिफरेंट. और ये जो लोग बातें कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी की वो फील नहीं है, वो पिक नहीं है जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की होती है, that is all bullshit. I think these are just lame excuses, but electrical car is equally powerful, just like a petrol or diesel car. अब मैं शहर से ड्राइव करके मेन हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, जिसको जर्मनी में ऑटोबान कहते हैं. ये कोई एक सड़क नहीं है. जर्मनी में इस तरह की बहुत सी हाईवेज हैं जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती. जर्मनी की जो हाईवे है, जो कि पूरे जर्मनी में होती हैं बहुत सी हाईवेज, उनको ऑटोबान कहा जाता है. उनमें बहुत से ऐसे पैचेस आते हैं जहाँ पे आप विदाउट एनी स्पीड लिमिट जो सी है वो गाड़ी चला सकते हैं. देयर इज नो स्पीड लिमिट. हाँ, जब आप किसी शहर के पास से गुजर रहे होते हैं या आप शहर के करीब से गुजर रहे होते हैं या कोई ऐसा पैच है जहाँ पर सड़क कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे स्पीड लिमिट ज़रूर आती है. बट व्हेन यू आर आउट ऑफ द सिटी देन यू कैन ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन. देयर इज़ नो स्पीड लिमिट. और ये मैं ऑटोबान पे आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है. मौसम कुछ अच्छा नहीं है, बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन मैं भगाऊँगा जितनी मैं भगा सकता हूँ. ये मेरे सामने एक आ गई BMW. इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं हर सूरत ओवरटेक करूंगा. और बारिश, मौसम खराब, लेकिन BMW को आज मर्सिडीज जोन सी है वो ओवरटेक करेगी. सो here you go BMW.
दिस कार इज़ फास्ट, रिलायबल और रोड ग्रिप इसकी बड़ी अच्छी है। जापानी गाड़ियों में, जर्मन और अमेरिकी गाड़ियों में सबसे बड़ा फ़र्क जो सा है वो रोड ग्रिप का है। मैंने इसको कर्व्स पे भी बहुत स्पीड में चलाया और इसकी रोड ग्रिप जो सी है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी कि एक जर्मन गाड़ी की होनी चाहिए। जापानी गाड़ियाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुरी लगती हैं कि जो ही आप स्पीड बढ़ाते हैं वो अपनी रोड ग्रिप जो सी है वो लूज़ करना शुरू कर देती है। वो ऐसे लगता है जैसे हवा में फ्लोट कर रही है। लेकिन जर्मन और अमेरिकी गाड़ियाँ जो सी हैं वो जितना आप तेज़ चलाते हैं वो उतनी फ्लैट, उतनी ही ज़मीन के साथ जाकर जुड़ जाती हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ जर्मन and American cars. That's why I always prefer a German and American car on a Japanese car. आप यहाँ पे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये डिस्क्लेमर कैसे दे रहा हूँ कि जर्मन और अमेरिकन कार्स की जो रोड ग्रिप है वो अच्छी होती है जापानीज़ कार से। तो भाई मैंने जापानीज़ गाड़ियाँ जिनमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उसके अलावा टुसॉन, जो भी गाड़ियाँ हैं, हुंडई और निसान, ये सब मैंने चलाई हैं। और लेकिन मैंने 5 साल जो है वो फोर्ड फ्यूजन जो सी है वो चलाई एंड आई वाज रियली सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ हिज रोड ग्रिप एंड बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ऑन द रोड। उसके अलावा मैंने BMW जो सी है वो तकरीबन 5 साल चलाई है एंड आई वाज रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ इट्स रोड ग्रिप, ब्रेक एंड कंप्लीट ऑरा और कंप्लीट प्रेजेंस ऑन द रोड, जो कि जापानीज़ गाड़ी में आपको नहीं मिलती। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कार इज ऑफरिंग, अ कंप्लीट शेप and presence on the road with all the modern features and functionalities.